नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्टाइल होम फर्नीचर, स्टाइल होम फर्नीचर को स्पॉन्सर्ड बाय एंड विलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस और फर्नीचर वर्ल्ड। ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र के निमचा कोलेरी के तिराट मौजा स्थित हाई वॉल माइनिंग में आज लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन का कारण अस्थायी कर्मियों को काम पर से निकालना एवं कोयला खदान में किए जा रहे विस्फोट था। बेरोजगारों के परिवार वाले एवं इस विस्फोट से परेशान लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि ईसीएल द्वारा यह कहा गया था कि जितने भी अस्थायी कर्मियों की जरूरत पड़ेगी इसी गांव के लोगों को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अचानक करीब 1 साल पूरे होने पर उन्हें निकाल दिया गया और बाहर के लोगों को काम के लिए नियुक्त कर लिया गया है। विस्फोट की वजह से कई लोगों के घर को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत के लिए मुआवजे देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ बोलने पर पुलिस द्वारा धमकाया जाता है। उन्होंने काम की मांग करते हुए विस्फोट को बंद करने की बात कही है। আমাদের দাবি মানবে ততক্ষণ গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ থাক। আমাদের ছেলেকে নিতে হবে তবেই গাড়ি চলতে দেবো। আমাদের দাবি মানতে হবে তবেই আমরা চলতে দেবো। দাঁড়াবো কি জন্য বিক্ষোভ করছেন? কি চাই আপনাদের? আমাদের ছেলেরা বসে আছে, বেতন নাই, আমরা খাবো কি? বাচ্চাদেরকে খাওয়াবো কি? তো কেন বসিয়ে দিল ওইটাই তো বুঝতে পারলো। আমরা জবাব চাইছি ছেলেরা আমাদের তাদের কাজের জন্য তাদের বসানো হয়েছে তাদের নোটিশ দেওয়া হয় নাই কিছু না, কিন্তু বাইরে ছেলে কাজ চলছে, কিন্তু বাইরে ছেলে কাজ করবে, গ্রামের ছেলে বসে থাকবে? বন্ধ থাকবে, সবাই বন্ধ থাক, মাইসও বন্ধ থাকে, কয়লাও যেমন কেউ উঠে নিয়ে যায়, তো মেয়ে ছেলে হোক আর যাই হোক। আমাদের এইখানে প্রথমে তো আমাদের ইসেল থেকে বলেছিল যে যার ছেলে নেওয়া হবে আপনাদের গ্রাম থেকে নেওয়া হবে, বলেছিল যে কোনো জটা ছেলে নেওয়া হবে গ্রাম থেকে নেওয়া হবে। আমরা বলেছিলাম ঠিক আছে স্যার, আমাদের গ্রাম থেকে ছেলে নেওয়া হবে। তো বলেছিল যে ঠিক আছে আপনাদের গ্রাম থেকে ছেলে দাও। আমরা গ্রাম থেকে ছেলে দিয়েছিলাম, ছেলেরা কাজ করছিল। কাজ করতে করতে হঠাৎ 1 বছর একদম পুরো কাজ করা হচ্ছে, হঠাৎ একদিন একবেলা কাজ হচ্ছে, এরকম টাইমে এসে পড়ে আমাদের ছেলেদিকে সবকে বন্ধ করে দিল। তারপরের দিন থেকে দেখছি বাইরের ছেলে নিয়ে কাজ করছে। আর এত অতিরিক্তভাবে ব্লাস্টিং, মানে সীমার বাইরে। আমাদেরকে বলেছিল যে না, ব্লাস্টিং যাদের ঘর ফেটেছে তাদেরকে আমরা মেরামতের জন্যে কি ঘরের ইয়ার জন্যে আমরা ক্ষতিপূরণ দেবো। আমাদের কিছু কাউকে দেওয়া হয় নাই। আমাদের ঘর এখনও পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে মানে এত ব্লাস্টিং হচ্ছে সীমার বাইরে। হ্যাঁ, আমাদের এখন এত ঘর ফাটছে সীমার বাইরে। আর আমাদের ছেলেগুলোকে সব ছেলেগুলোকে বয়স্কনে রেখে দিচ্ছে আর মার ইসিএল আমরা কাজ চালাচ্ছি। আর আমাদের গ্রাম, আমাদের জমি, আমাদের জায়গা, আমাদের মৌজা, আমাদের ছেলেকেই বাদ, বাকি সব বাইরে নিয়ে কাজ চলছে। হ্যাঁ, আর কিছু যদি বলতে এসে আমরা তো পুলিশ দিয়ে আমাদেরকে ধমকি দেখাতে হচ্ছে। এমনকি 5 জন ছেলের নামে আমাদের কেস দিচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা বলতে গেছি তার জন্য আমাদের 5 জন ছেলের নামে কেস দিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ছেলেদের নামে কেস আছে বিনা কারণে। এখন কি করছে? এখন আমাদের দাবি আমাদের কাজ চাই আর ব্লাস্টিং যেমন মানে বন্ধ থাকে। এখন ম্যানেজমেন্ট ইসিএল বন্ধ, এখন সব বন্ধ থাক একদম। আমাদের যতক্ষণ না ফয়সালা হবে, আমাদের গ্রামের ছেলেকে যতক্ষণ কাজ দিবে ততক্ষণ বন্ধ থাকবে। হ্যাঁ, সবাইকে জানাচ্ছি। তারা কি আমরা কোনো নেতাদের কোনো হেল্প করে নাই।
আজ লয় কাল, কাল লয় পরশু, এরকম ভাবে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ইয়া করে রেখেছে। আমাদের নেতার কোনো সাহায্য হয় এখানে আমাদের নেতার কোনো সাহায্য নেই। হয় আমাদের যদি নেতারা ঠিক থাকতো তাহলে আমাদের এই যে ছেলেগুলো, এই ছেলেগুলোর নামে কি কেস হতো? কোনোদিন কেস হতো না। আমাদের নেতারা ঠিক নাই বলে তাই আমাদের ছেলের নামে কেস দিন দিচ্ছে, হ্যাঁ বোস করেন দিচ্ছে হঠাৎ। হ্যাঁ আমাদের গ্রাম, আমাদের সব কিছু, হ্যাঁ আমাদেরকে উল্টা ধমকাছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে জয়দেব পাল। কিছু করার নেই, এটা যে সংস্থা নিয়েছে তারা বুঝবে। না, এটা আমাদেরও কিছু করার নেই আপাতত, কারণ এটা ইসিএলের কাছে নিয়েছি। ইসিএল যেরকম ডাইরেক্টিভ দিচ্ছে সেইভাবেই আমরা কাজ করছি। এটা পেমেন্টের ব্যাপারে বলছিল, কি বলবো? পেমেন্ট ওদের বলেছি হয়ে যাবে, পেমেন্ট তো কখনো বলিনি যে হবে না। ওদের 1 পয়সাও পেমেন্ট আরও মার খাবে। আর যে ওরা তো এগ্রি করেই গেছিলো, তারপর কেন করছে আমি জানি না। ব্লাস্টিংটার ব্যাপারে কি বলবো? ব্লাস্টিংটা ইসিএল করে, ব্লাস্টিংটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি নয়। ব্লাস্টিং করা, ড্রিল করা, বারুদ দেওয়া সব ইসিএলের কাজ। ওটা ইসিএলকে আপনাকে বলতে হবে, ওটা আমি কিছু বলতে পারবো না। অপরাজিতা চ্যাটার্জি, এই প্রজেক্টটার ইনচার্জ। गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार हुए टीएमसी नेता अनुब्रतो मंडल को फिलहाल सीबीआई अदालत द्वारा 14 दिन की जेल हिरासत में भेजा गया है। अनुब्रतो मंडल की सीबीआई अदालत में पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि सड़क को जाम करने से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इतना प्रोटेक्शन देकर अनुब्रतो मंडल को सीबीआई अदालत लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुब्रतो मंडल ने सभी को मारा है, कोई भी उसे नहीं मारेगा। पुलिस लोगों का काम बस पहरा देना ही रह गया है। आपको बता दें कि इस संबंध पर कोर्ट में लॉयर्स एवं जिला अस्पताल में लोगों ने आपत्ति जताकर अपनी परेशानियों को बयां किया था। যেদিন থেকে কোর্টে তুলছে, এটা 3বার কোর্টে নিয়ে এলো, যতবার আসছে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের তো প্রচুর প্রবলেম, পুরো এক একটা রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে, মানুষজন যাওয়া আসা করতে পারছে না। এত এত ওকে কেউ মারবে না, ও নিজেই সবাইকে মেরেছে, ওকে কেউ মারবে না, কোনো লোকজন কেউ মারবে না ওকে। ও এত প্রোটেকশন দিয়ে এইভাবে সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। ও এইরকম একটা গাড়িতে করে নিয়ে যাক। এমনি সাধারণ যে আসামিদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলখানা থেকে কোর্টে বা হাসপাতালে, ওকেও সেইভাবেই নিয়ে যাওয়া উচিত। অত প্রোটেকশন, অত পুলিশের তো খেয়ে দিয়ে কাজ নেই। ওই যা দেখেন না, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসে যখন রাস্তা 1 ঘন্টা করে বন্ধ করে রাখে, চতুর্দিকে সমস্ত পুলিশের আর কোনো কাজ নেই। তো এইসবই তো অনুব্রত এইসব লোককে পাহারা দেওয়াই কাজ হয়েছে পুলিশের এখন। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से एक नाट्य परिसंवाद का आयोजन आज हिंदी भवन में किया गया, जिसका नाम रखा गया रंग अड्डा। पश्चिम बंगाल अकादमी के सदस्य मनोज यादव ने कहा कि इस दौरान हिंदी नाट्य का पश्चिम बंगाल में स्थायीकरण किस तरह से किया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही सरकारी तंत्र एवं एनएसडी से इस स्थायीकरण में क्या सहायता मिल सकती है, इस पर भी चर्चा हुई। इस नाट्य परिसंवाद में सौती चक्रवर्ती एवं राजेश सिंह खास तौर से उपस्थित थे। भारत में एनएसडी विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ा रहे हैं। आज एक नाट्य अड्डा में हम सभी सर हमारे कुछ महत्वपूर्ण निर्देशक श्री राजेश सिंह, डिजाइनर, अभिनेता, निर्देशन और वो 6 साल तक कोलकाता के ग्रुप थिएटर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने डिजाइन और निर्देशन से विशेषज्ञता के साथ केवल इतना बोलते हैं, जब हम जान रहे हैं तो उनके पूरे जीवन काल को उन्होंने जो आज प्राप्त एनएसडी रिपोर्टिंग कंपनी के नाटक चाणक्य विष्णुगुप्त का निर्देशन भी किया है। आगे वे एक अभिनेता के रूप में रहे हैं और उन्होंने पूरे भारत में दर्शन किए हैं। ये अपने आप एक नाट्यकार के रूप में उन्होंने 70 से अधिक प्रस्तुतियों को डिजाइन किया है। उन्होंने बैठते हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक सबकी हम उतार देते हैं और हमें सारी नॉलेज होती है। बेसिकली उस अड्डे का जो मतलब होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीजें। दिल्ली में ये चीज नहीं होती है। इवन नाटक खत्म होने के बाद भी एक
चाहे वो 1-1.5 मिनट की बातचीत हो, लेकिन उसके बाद कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत नहीं होती। इसलिए ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, अड्डा। अड्डे का मतलब यही होता है कि कोई एक इंसान की बात ना करे। अड्डे का मतलब है कि सब बात करें। और हम सब जिस ट्रेनिंग से गुजरे उस ट्रेनिंग में एक अनौपचारिकता बहुत जरूरी है कि हम इधर फॉर्मल होकर बैठ जाए और आप लोग सुनते रहे, वो ना रहे। जहां से सर ने बात शुरू की थी हिंदी थिएटर और रंगमंडल, आज से अगर जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तब हमारे पास ऑप्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से यहाँ पर कई आर्टिस्ट पधारे थे, राजेश सिंह जी, स्वती चक्रवर्ती जी, मिश्रा मैडम। तो हम लोगों ने उनकी उपस्थिति में एक बच्चों के संग, नाट्यकर्मियों के संग एक परिसंवाद का आयोजन किया। इसे रंग अड्डा का नाम दिया। बहुत गंभीर बातें हुई हैं कि किस तरह से नाटक का बंगाल में अस्थायीकरण किया जाए, हिंदी नाटक का, और उसमें सरकारी तंत्र की क्या भूमिका हो सकती है और हमें एनएसडी से, उमादी से क्या सहयोग मिल सकता है, इस पर भी विस्तृत बात हुई है। आगे चल के भी हम लोग रंग अड्डा के माध्यम से इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे और अस्थायीकरण की दिशा में बढ़ेंगे। मैं मनोज यादव, सदस्य हिंदी पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है।
इसके अलावा अत्याधुनिक एक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में कौन नहीं चाहता कि अपना मकान हो, वो भी आलीशान। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है। तो जल्द ही बुक करें। हमारा पता है सोस्ट्री नगर, इस्माइल नियर ASN प्ले स्कूल। कॉन्टैक्ट करें 9332993881। नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने वार्ड नंबर 6 में हुए उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की और कल उन्होंने पार्षद पद की शपथ दी। विधान उपाध्याय की जीत से तृणमूल नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज के मजार शरीफ आजाद नगर TMC पार्टी कार्यालय में आफ्ताब जलाल के नेतृत्व में शाहिद परवेज एवं आरजू मुख्तार की उपस्थिति में TMC कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। TMC नेता शाहिद परवेज ने कहा कि जीत तो पक्की थी। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि आने वाले 20-25 साल तृणमूल का ही राज रहेगा। आराम से लगाइए। घूम के इधर घूम के रही घूम के सुबह दे जाएगा सदा इधर घूम। कार्यक्रम ये हो रहा है कि हमारा मेयर जो आसनसोल से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर विधान उपाध्याय, जो उनका कल इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद उनका जीत का उसी में आज हम लोग रानीगंज मजार शरीफ आजाद नगर वार्ड नंबर 35 के ऑफिस में यहाँ पर हम लोग एक जश्न मना रहे हैं और जश्न मना मेरा हक भी है। जीत तो पक्की थी जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मगरबी बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी के मुकाबले में दूसरा कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो बंगाल को चला सके। और हम समझते हैं कि 20 से 25 साल तो तृणमूल कांग्रेस का ही राज रहेगा। ये छोटा मोटा घटना किसी परिवार के अंदर में भी कोई अगर घर का कोई सदस्य अगर कोई गलत तरीके से किसी जगह पर अगर कहीं ना कहीं अगर अपने घर के डिसिप्लिन से, हमारे दीदी पिछले 2011 से अब तक जो भी डेवलपमेंट का काम किया आपके इलाके में भी देख लीजिए, लोगों से पूछिए इससे पहले जो काम हुआ और अब जो हो रहा है, काम पर हमको फोकस करना। हम रिकॉर्ड में कोई भी सरकार 35 साल तक यहाँ तो जनरेशन को ये बात को सोचना है कि हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है दीदी का आइडियोलॉजी पर, क्योंकि हमेशा उसके अंदर में सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, झूठ, सच, धर्म, जाति का राजनीति। तमाम लोग बंगाल के राजनीति में तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं और बंगाल के छोटा मोटा खेल खेल के अगर ये सोच रहा है कि बंगाल के लोगों को फिर भी माइंड डाइवर्ट करके एक तरह से फिर से हमें राजनीति के मदद वापस आएंगे, वापसी उनका नहीं है। वो मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, क्योंकि आपके नेतृत्व तो सब हमारे लीडर है, हम लोग वर्कर है, दीदी का वर्कर है, नेता बोलकर कोई नहीं है। आप काम करिए, लोग बताएंगे ये नेता है। आज हमको आसनसोल से बुलाया गया कि हम लोग वहाँ पर एक अच्छा लीडर है। लीडर वही होता है जो समाज के लिए काम करता है। लीडर सिर्फ फेसबुक में बनाकर अपना फोटो छोड़ने से लीडर नहीं होता, जो ग्रास रूट में जमीनी स्तर में काम करता है। तो ये हो रहा है कि विधान उपाध्याय ऐसा मैंने हम समझते हैं कि देखिए हमारा पार्टी का एक ऐसा मेयर को दिया है जिसने अपना दरवाजा पहले दिन से खोल दिया था। शाहिद परवेज है, मैं तृणमूल का छोटा मोटा कार्यकर्ता। पकड़ो, इसको पकड़ो।
ये खेल रही हो तो पकड़ लेना। कौन है ये? दादा है, दादा। कहाँ? मुझे तो फोन नहीं, पुलिस को नहीं, ये पहले एक काम करते हैं, हमको दे देते, वो प्रोटेक्शन भी ले लेते हैं। क्या दे देते? नहीं ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? वो हमारी रक्षा करता है। अच्छा, हमारी रक्षा? ये गुंडे हैं? तुम इतने काहे हो गए हो क्या? मैं मुझे कपड़े दो ना। घर में रखते हो? क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया? और बता जल्दी बता। अच्छा पेड़। ओहो, बच्चे लोग खेल रहे हैं। अच्छा, आदमी लोग जा रहे हैं। वाह। और देखो हाथी। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब तो तुम खुश हो ना, है ना? चलो मैं फोन रखूं? फोन मुझे दो। हाँ, अच्छा चलो मुझे एक प्यारी सी किसी दे दो, है ना? अच्छा, बहुत मीठी है, एक बार और दो। बहुत प्यारा बच्चा है। इतना प्यारा। बुरा नहीं मानूंगा अगर सच बता दोगी तो। हाँ, और तुम सच बताते हो? मेरे मोबाइल का पासवर्ड तक तुमको पता है ना? हाँ। चिट्ठियां तुम पढ़ती हो? हाँ। मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, क्यों मिलूं, क्या करूं, सब कुछ तुम्हें पता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हारी निगाह ना हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास अपना कोई निजी काम जो नहीं है, जो सिर्फ मेरा हो, इसीलिए मैं तुम्हारी चिट्ठियां पढ़ती हूँ, फाड़ती हूँ और हर वक्त तुमसे पूछती रहती हूँ क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। अच्छा, तो वो फोन पर जो चुम्मा चाटी कर रही थी, वो इस तरीके से कहके तुम पचा जाना चाहती हो? जैसे तुम नहीं पचाते। होश में रहो। तुम होश में रहो। बात कर रही है मेरे से? हाँ। How dare she? ये देख रही है, ये बंगला, ये गाड़ी, ये थर्ड बार, ये लग्जरी। You shut up! हमारे आसपास ये जितने भी कत्ल हो रहे हैं, डाके, लूट, चोरियां, इन सब में हमारा हाथ है। What? हमारा हाथ है? आप बोल रही है जी में आता है, इसका नाम है, इसका गला घोट दूं और खुद भी मैं खुदकुशी कर लूं। इसकी जरूरत नहीं है। ये समझती क्या हो तुम? क्या समझती है अपने आप को ये? अरे ना, मानव बने रहने के लिए, अनैतिक बना तो नैतिक बने रहने के लिए, क्या समझती है ये? बोल रही है तो खुदकुशी किसकी करोगे? मैं करूंगा ना। अच्छा, हाँ। कर नहीं पाओगे? कैसे नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे? अरे मेरी इच्छा है, मैं करके दिखाता हूं। मैं बता रही हूँ नहीं कर पाओगे। दिखाता हूँ खुदकुशी कैसे। अरे नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। पियो पानी, खूब पियो। बिल्कुल नहीं है। और तुम लोग किसकी बातें करती रहती हो? वो मिस्टर आनंद। उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। आराम से बातें करते हैं, रिलैक्स, सिविलाइज्ड वे में। अब देखो सामने, देखो वो रोड दिख रही है, वहां जो फुटपाथ है, वो देखो मिस्टर आनंद फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, भूख मर रहे हैं। अखबार बंद हो गया उनका, सच लिखते थे ना अपने अखबार में। और लो, वो मिसेस आनंद है, आपकी सहेली, आपकी गाइड है, सीधी है ना, सुलझे विचारों वाली, लात मार के स्कूल से बाहर कर दी गई है। बड़े इस तरह का नाटक, वो भी प्रीमियर शो कहीं पे जाकर के करना एक अपने आप में रिस्क होता है, और कलाकार का काम है वो रिस्क लेना। सबसे बड़े कॉलेज, इसमें एक हिंदी मीडियम भी कॉलेज चलता है विंग के रूप में, बंगाल में एक नायाब बात है। उसके प्रिंसिपल आचार्य डॉक्टर अमिताभ बसु। अब मैं
अमिताभ बसु नाटक के। मैं अनुरोध करूंगा सुरेंद्र जालान जी से कि वे मिमेंटो दे करके यहाँ स्वातिदा का सम्मान करें। स्वातिदा बहुत नामी गिरामी लाइट आर्टिस्ट है, डिजाइनर है। करने के लिए हम सबको प्रोत्साहित किया और हम तथ्य और संस्कृति विभाग के आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था की। तो आप सबों का आभार। शुभ रात्रि। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।